हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज. दिस इज चैप्टर 4 and we are going to talk about logarithms today. Before we begin, I must tell you for whom these video lecture is relevant. Students, if you are in class 9th and 10th, it's a must watch for you. It's a right time to understand logarithm. If you are in 11th and somehow you have no idea what this logarithm is, or you just want to have a quick revision that what exactly is logarithm, then this video is also for you. If you are in class 8, then it is not I won't say that it is a compulsory thing for you, but interested students are definitely welcome to watch this video. But I must mention, before you start watching this video, I must mention you that the prerequisite for handling logarithm is you should have an understanding of what exponent is and what are the properties of exponent. If you have a good idea, or even a okayish idea of what is exponent, what the basic definition of exponents are, and how the properties of exponents act, then also you can watch or try to understand. Okay, the students of 9th, 10th, it's a must for you. The students for 11th, if you have like you get little hazy regarding logarithm, then you must watch it. And class 8 student, you can just come watch the video, you can enjoy, you can look into it, you can look twice, thrice, so that it starts making sense to you. This chapter, logarithm, log back, if you talk about, let's say 20 years ago or 18-20 years ago, if you would have seen the curriculum of NCERT, logarithm was very much part of class 9th and 10th. But somehow in 2003, 2004, there was a radical change in the curriculum of NCERT, where we see that the logarithm had been removed from class 9th and 10th. So that was a very sad part, because logarithm was something which is very much required for students of class 9th and 10th. So when students go into class 11, suddenly logarithm appears, and students really don't get time to actually understand what logarithm is. So it's a right time, if you are in class 11th and you have you get little shaky when you see logarithm, then you should watch this video. Now, as you know, in first three chapters, what we have done in first chapter, we did some problem solving on the concept of proportionality. In chapter 2, we talked about how to find the number of factors. We understood the principle of counting from the chapter 2. In chapter 3, we understood how to handle what is arithmetic progression, what is geometric progression, how to find the sum of geometric progression, and then we understood how to find the sum of factors, as you already have done fantastically in your assignment in the last chapter, which was chapter 3. Now chapter 4, logarithm. So let's begin with logarithm. So let's see what on earth is a logarithm. Many people really feel that what exactly is logarithm. They don't understand what exactly is logarithm, so they get really stuck, they get really shaky. Now before we jump into what is logarithm, I want to talk to you about when you were in class 7, 8, something called square numbers were introduced to you, right? You remember squaring a number. If I ask you what is the square of 7, you will say 49. If I ask you what is the square of 13, you would say 169. If I ask you what is the square of 19, you would say 361. So what exactly you are doing? I am just giving you a number, 7. What you are doing, 7 into 7, that is 49. When I am asking you a number, 12, what you are doing, 12 into 12, that is 144. So the input was my question, and output is something like whatever you are squaring it up, whatever the answer is coming, that becomes the output. So I put 7 as an input, the answer is 49. I put 13 as input, the answer is 169, right? Now then you learned another concept called square root. What was the square root? In that, when I ask you which number when squared gives the product 361, it means now I want you to do a backtracking, that what number being multiplied with itself gives 361. So you can do a quick number crunching in your head, and you can say, okay, it's 19. 19 into 19 makes 361. So I can say the square root of 361 is 19. If I say what number when multiplied with itself gives you 625, then you can do a little bit of mathematics in your head, and you can imagine, okay, 25 multiplied with 25 gives you 625. So you can quickly say, okay, 25 is the square root of 625. So you see, there is a relation between square and square root. In the square, I gave you an input, you gave me the output. In the square root, I gave you the output, you did the backtracking, and
told me what exactly the input was. That was the relation between square and square root. Similarly, you must have learned cube and cube root. Though you got the method, the mathematical method of how to find square root. Similarly, you will also get the mathematical method of how to find the logarithm. But I'll first, similarly, when I asked you about cube, I asked you what's the cube of 5, you say 5 into 5 into 5, that was 125. If I ask you what is the cube of 7, you say 7 into 7 into 7, that's 343. So I gave you the input, you told me the output. At the same time, when I gave you, okay, which number's cube is 729? So what you do? A backtracking, that what number being multiplied with itself thrice, that gives me 729. So you do 9 into 9 into 9, that is 729. So if I give you which number cube is 1331, so definitely you do the backtracking and say 11 multiplied with 11 multiplied with 11 gives 1331, so the 11 is the number. So the cube root of 1331 is 11. So the relation between square and square root, the relation between cube and cube root, you see both are getting interchanged, they are getting inverse of each other. Similarly, there is a strong, exactly the same relation holds between the exponent and the logarithm. The same relation between what square and square root had the same relation, cube and cube root had the same relation exponent and logarithm had. Now let me tell you what exactly. First of all, if I ask you, tell me, bacha log, tell me, what is 2 cube? So you will hardly take time and say the answer is 8. So what do you do? 2 into 2 into 2, 3 times 8. When I ask you, okay, tell me what is 7 to the power 2? So you say 49. Then I ask you, okay, tell me what is 3 to the power minus 1? So you say 1 by 3. When I ask you, okay, what is 8 to the power 0? You say 1. When I say, okay, what is 11 to the power minus 2? You say 1 upon 121. I hope इतना आपको पता है. तो आपसे मैंने क्या पूछा? 2 to the power 3 आपने तुरंत 8 बोला. आपसे पूछा 7 स्क्वायर आपने तुरंत 49 बोला. आपसे पूछा 3 to the power minus 1 आपने तुरंत 1 by 3 बोला. आपसे पूछा 8 to the power 0 आपने तुरंत 1 बोला. आपसे पूछा मैंने 11 to the power minus 2 आपने तुरंत 1 upon 121 बोला. This is what you have already learned, right? Now I'll change the question. I'll say 5 to the power x is 125. मतलब 5 पे मैं कितना पावर दूं कि 125 आ जाए. तो आप बताइए क्या आंसर दोगे? आप क्या बोलोगे? If I say 5 to the power x is 125, what is x? So definitely many of you know it is x is equal to 3. It's not a difficult question. It's a question of exponent. Still, it's a question of exponent. What you did a backtracking. Okay, 5 when how many times multiplied with itself gives you 125. Now, if I give you something like, okay, what is 7 to the power x is equal to 1 by 49? So definitely you know 7 square is 49 and then the reciprocal is there. So definitely you will take hardly any time and say x is equal to minus 2. So what you are doing? You are doing a backtracking. If I ask you, okay, tell me what is 3 to the power x is equal to 243. So you will say, okay sir, x is 5. Because 3 when multiplied 5 times to itself, the answer turns out to be 243. So whatever these three, just focus on these three questions I asked. Just focus on these three questions. This question, then this question, then this question. Now if you focus, these three questions were exactly exponent. I just changed the story of input. I gave you the output and asked you the input. I gave you the output and asked you the input. I gave you the output and asked you the input. Similarly, this question in terms of log can be written as, what is log base 5 125? This question, second question can be written as, what is log base 7 1 by 49? And what is log 3 243? So these three boxes is exactly same as saying these three. So above three question exactly same as this question. So अगर आप हिंदी में पूछोगे what is log 5 125, तो इसका मतलब है 5 पे मैं कितना पावर दूं, 5 पे मैं कितना पावर दूं कि 125 आ जाए. The answer is going to be 3. आपसे कोई पूछे log 7 1 by 49, तो मतलब 7 पे मैं कितना पावर दूं कि 149 आ जाए. You will say -2. log 3 243 means 3 पे मैं कितना पावर दूं कि आंसर 243 आ जाए. You will say 5. So let's formalize whatever we learned. We learned that, okay, the relation between square and square root, cube and cube root, and exponent and log is
the same relation, that inverse, it's a backtracking. Okay, now let's say आपको, जैसे मैं एक्सपोनेंट पहले लिख देता हूं, अगर मैं लिखता हूं a टू द पावर b इज इक्वल टू c, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। a को आप क्या कहते हो, a को आप कहते हो बेस, और b को क्या कहते हो आप, पावर, और c आपका फाइनल आंसर जो होता है। ठीक है, अब इसी चीज को आप ऐसे लिखते हो, log a c b। आप ये जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो अब आपका आउटपुट हो गया। अब क्या हो गया आपका आउटपुट, और a ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो log बेस ए सी, और आपको पता है बेस एक्सपोनेंट का क्या होना चाहिए, a जो बेस है, जो आप ये जो इक्वेशन डिफाइन करते हो, ये जो आप इक्वेशन डिफाइन कर रहे हो a टू द पावर b इज इक्वल टू c, इसमें a पे एक कंडीशन है, a एक पॉजिटिव नंबर है, a इज पॉजिटिव नंबर, a इज positive number and a should not be equal to 1. a is a positive number and it should not be equal to 1. तो आप जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का पावर निकालो, चाहे वो रैशनल पावर हो, इरैशनल पावर हो, जो भी हो, आप जब भी किसी पॉजिटिव नंबर पे पावर निकालोगे तो वो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देगा। तो दैट इज व्हाई आप हमेशा कहते हो log AC में, log AC में a हमेशा बेस कहलाता है, और बेस हमेशा a should not be equal to 1 and a should be positive number, और c हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही log निकाल सकते हैं। तो if someone asks you what do you understand by log AC, तो अगर हिंदी भाषा में बोलो तो मैं बोलूंगा a को कितना पावर दिया जाए कि c आ जाए, a को कितना पावर दिया जाए कि c आ जाए, what power should we raise on a so that we get the output as a to the as c। तो अगर आप इसको इक्वेशन एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए, मान लीजिए log AC इज समवेयर लाइक इक्वल टू b, तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखूं तो होगा a पे पावर b इज इक्वल टू c। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज log AC, तो इट मींस बाय व्हाट पावर a should be given so that we get the exponent output as c. This is what is the definition of log. तो अब आपको आई एम श्योर log के डेफिनेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होता है, जैसे कि आपने जैसा कहा कि log 10 100, तो आपको पता है 10 आपका बेस है, और जिसका आप log निकाल रहे हो ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका जो आंसर आएगा, 10 को मैं कितना पावर दूं, 10 को मैं कितना पावर दूं कि 100 आ जाए। यू नो द आंसर x is 2, so you are going to say the answer is going to be 2. So interesting thing is about that you will be getting log a b form। तो आप जब भी log a b फॉर्म देखते हैं या log x y फॉर्म देखते हैं, तो उसमें x आपका बेस होता है, और बेस एक पॉजिटिव नंबर होता है, और वो 1 नहीं हो सकता, और जिसका आप log निकाल रहे हो वो भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो डेफिनेटली जब आपसे कोई पूछता है log 216, यू जस्ट हैव टू थिंक 2 को मैं कितना पावर दूं कि 16 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे 4। अगर आपसे कोई पूछता है log 3 - 1, तो आप क्या बोलोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का log आप नहीं निकाल सकते। कोई आपसे पूछेगा log 3 1, तो 3 को कितना पावर दिया जाए 1 आ जाए, तो आप बोलोगे 0। So this is how you are going to answer. Whenever you see log, you are just going to get into the basic definition of what is log. जैसे एक पैटर्न में दिखाऊंगा, just a sec. Yes, I'll show you some interesting pattern and interesting bases. अक्सर आपको जब भी log दिया हो, यहाँ पे log, यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट लिखा होता है और यहाँ पे एक नंबर होता है। ये सबस्क्रिप्ट आपका बेस है, और ये जिसका आपको log निकालना है। ये जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, और जो आपका बेस है वो भी पॉजिटिव है, एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये आपको कहानी पता चल चुकी है। इसमें जो सबसे खास बात है, कभी कभी आपको नंबर लिखा होगा log 2 16, log 3 5, log 4 7, तो आपको हमेशा बेस दिया रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बेस नहीं लिखा होता है, कभी कभी बेस नहीं लिखा होता है, कभी कभी सीधे लिखा होता है log 15, log 150, log 1000, ऐसे करके लिखा रहता है। तो बेस इसमें मिसिंग होता है। तो जब भी बेस मिसिंग होता है log लिखा रहता है, जब भी बेस मिसिंग होता है log लिखा रहता है, तो आप एज्यूम करते हैं बेस इज
आप क्या एज्यूम करते हैं कि बेस इज 10, सो बेस 10 को आप अक्सर इग्नोर कर सकते हैं और सिंपली लॉग लिख सकते हैं। नॉर्मली आपको बहुत जगह लॉग बेस 10 भी लिखा रहेगा, कभी कभी बेस 10 नहीं लिखा रहेगा, तो लॉग को आप हमेशा रीड करोगे, अगर लॉग और नंबर लिखा हुआ है तो आप हमेशा रीड करोगे कि द बेस इज 10। कभी कभी आपको लिखा रहता है ln 15, ln 150, ln 1000, इसमें भी बेस मिसिंग होता है, लेकिन यहाँ पे लॉग नहीं लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ln। इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। इसमें बेस आपको 10 नहीं एज्यूम करना है। इसमें जो बेस होता है वो एक इररेशनल नंबर होता है, उसको हम ई कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम ई कहते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718। हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, मैथमेटिक्स सीरीज में भी एक्सप्लोर करेंगे, और इस लॉगरिथम के भी नेक्स्ट पार्ट में जब हम जाएंगे तो ई नंबर क्या होता है। इट्स kind of a very close it has a very close relationship with pi also. You can say it is a cousin of pi. So e and pi both are irrational numbers, so this is also one irrational number। तब आपको अगर ln लिखा हो और बेस में कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब बेस e है। कभी कभी आप log बेस e भी लिखा रहता है, कभी कभी सिर्फ ln 7 लिखा रहता है। तो आपसे कोई बोले log 100, इसका मतलब है log बेस 10 100, और आपसे कोई बोले ln 100, इसका मतलब है log base e 100, where e is a Euler constant or a Euler number. What you say, it is an irrational number, and you call it to, it is approximately equal to 2.718, because it's an irrational number. It is not will be actually equal to 2.718, but approximated could be 2.718. Why it is a natural base log, why this irrational number is considered to be, will be, that's a topic of another thing, another day we'll be discussing that also. Now second thing, when the base is 10, I would like to talk more about when the idea is about base 10. Now let's say, when I say base is 10, log 10 1, तो 10 को मैं कितना पावर दूं कि 1 आ जाए? So you will say 0. जब मैं आपको बोलूं log 10 10, तो आप क्या बोलोगे? 10 को मैं कितना पावर दूं कि आंसर 1 आ जाए? log 10 100, मतलब 10 को मैं कितना पावर दूं कि 2 आ जाए, 100 आ जाए, तो मतलब दैट इज 2। log 10,000, तो मतलब क्या हुआ? 10 पे मैं कितना पावर दूं कि 1000 आ जाए? log बेस 10 10,000, मतलब 10 पे मैं कितना पावर दूं कि 10,000 आ जाए? log बेस 10 1 लाख, 10 पे मैं कितना पावर दूं कि 1 लाख आ जाए? 5। What is the idea is, आप देख रहे हो log 1 is 0, log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is 3, log 10,000 is 4, and log 1 lakh is 5। आप 10 को रिमूव भी कर सकते हो बेस में, because the moment you write log it means it's a base is 10। Now the idea I want to discuss is, if you have to find something like log 2, log 5, log 9 when the base is 10, so definitely the answer is not going to be 0, not going to be 1. It is something going to be between 0 and 1. Between 0 and 1, it is going to be 0 point something. 0 point something. When you ask me what about log 11, log 15, log 19, मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर 10 और 100 के बीच में कोई भी 2 डिजिट नंबर, उसका log क्या होगा? 1 point something। क्या होगा? 1 point something। If you are going to talk about any 3 digit number, as you know log 100 is 2 and log 1000 is 3, so any 3 digit number would be 2 point something, and any 4 digit number would be would be 3 point something, and any log of any 5 digit number is going to be 4 point something. This is what I want to tell you the idea. So if you find the log of any number and it is like 7 point something or 8 point something, it means the number of digit it contains is 7. I'll tell you what exactly these are, but I just wanted to know that that की log decimals में भी होते हैं, log की value decimals में भी होती हैं। तो आप जैसे कोई बोले log बेस 10 रूट 10, बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप बोलोगे हाफ। क्या बोलोगे? क्योंकि 10 पे मैं कितना पावर दूं कि रूट 10 आ जाए, तो आप बोलोगे पावर हाफ, विच इज इक्वल टू 0.5। सो यू कैन डेफिनेटली से log 10 रूट 10 इज 0.5, एंड रूट 10 इज, व्हाट इज रूट 10? इट इज समवेयर 3 point root 10 is something like 3.2 3.1 something. So if someone asks you what is log of 3.1 something, so you are going to say it is approximately equal to 0.5. तो आप क्या कर रहे हो? log जब आप 1 डिजिट का निकाल रहे हो तो it is going to be 0 point something. if अगर आप log 2 डिजिट का निकाल रहे हो तो it is going to be 1 point something. अगर आप log 3 डिजिट का निकाल रहे हो तो it is going to be 2 point something. अगर आप log 7 डिजिट का निकाल रहे हो तो it is going to be 6 point something. I am sure आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सिमिलरली आप ये भी ध्यान दो कि सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि आप
log 1, अगर मैं log 1 से नीचे जाता हूँ, आपने ये देखा, जस्ट आई विल से राइट इट अगेन, log 1 इज 0, log 10 इज 1, log 100 इज 2, log 1000 इज 3, log 10,000 इज 4. सो यू गॉट द आइडिया कि अब क्या होगा अगर मैं कहूँ log 0.1, मतलब log 1/10. 0.1 इज, अब 10 पे मैं कितना पावर दूं कि 1/10 आ जाए, तो बताइए क्या होगा, -1. अगर मैं log 0.01 लिख दूं तो आंसर होगा -2. अगर log 0.001 कह दूं तो आंसर होगा -3. और अगर आप कोई भी डेसिमल लोगे 0.001 और 0.1 के बीच में, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक -1 पॉइंट समथिंग. अगर आप -0.001 और अब यहाँ पे कोई भी लॉग का आंसर क्या आएगा, -1 पॉइंट समथिंग. यहाँ पे कोई भी आंसर क्या आएगा, -0 पॉइंट समथिंग. सो दिस इज हाउ यू कैन से कि लॉग का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है और आप डेसिमल फ्रैक्शन सबके लॉग निकाल सकते हैं. अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आगे आने वाला है, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ अ लॉगरिथम. तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि किसी भी लॉग को अगर आप निकालिएगा, मान लीजिए आपने log n निकाला, बेस 10 है, n निकाला और आपके पास आंसर आया 7.345. एज्यूम कर रहा हूँ दीज ऑल आर फिक्टिशियस नंबर. तो आपने कहा कि मैंने एक नंबर का लॉग निकाला बेस 10 के साथ, तो आंसर क्या आया 7.345. तो आप देख सकते हो जो भी आंसर आ रहा है उसमें एक इंटीग्रल है और इसमें एक डेसिमल पार्ट है. इसको आप इंटीग्रल पार्ट कहते हो जो इंटीजर से बना होता है, और इसको आप कहते हो फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल का पार्ट है, इसे आप कहते हो फ्रैक्शनल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट का नाम दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक. क्या कहते हैं इसे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग. और फ्रैक्शन का नाम दिया गया है मैंटिसा. कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया है इंटीजर ऑफ जो भी लॉग निकाला, और मैंटिसा उसके फ्रैक्शन. तो अगर आप किसी का भी लॉग निकालते हैं जैसे 3.1, 3.2, 3.7, तो जो आंसर आ रहा है उसमें जो इंटीजर है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और फ्रैक्शन मैंटिसा जो होता है वो फ्रैक्शन होता है. एक खास बात जो आपको देखना होता है, जो फ्रैक्शन होता है, जो मैंटिसा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. इंटीजर नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है. आइए इसके बारे में बात करते हैं और डिटेल में, तो आप समझ जाएंगे. सो द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज इंटीग्रल एंड द अदर इज डेसिमल पार्ट. नाउ इंटीग्रल part is known as characteristic and decimal part is mantissa. मैंने mantissa को पिंक कलर से लिखा है और कैरेक्टरिस्टिक को ऑरेंज कलर से. मतलब जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑरेंज है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट है वो मैंटिसा है, जिसको मैं फ्रैक्शनल पार्ट भी कह रहा हूँ. तो जैसे अगर मुझे इस नंबर का लॉग निकालना है, जो कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है log 3257. एज यू कैन सी इट इज अ 4-digit नंबर. It is a 4-digit number. जैसे 3257 is definitely lying between 1000 and 10,000. इसका लॉग क्या होता है 3, इसका लॉग क्या होता है 4, तो डेफिनेटली इसका लॉग क्या होगा 3 point something. तो इसमें जो 3 है वो देखिए क्या है, ये मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है, इसे ये इंटीजर हो गया. और आपका ये जो पिंक कलर से लिखा है ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट. तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इसे हम कहते हैं मैंटिसा. तो जब भी आप लॉग निकाल रहे हैं तो आप कह सकते हो जो इंटीजर है उसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉग कहते हैं, और जो फाइनल आंसर आया है उसमें जो फ्रैक्शन है उसे हम मैंटिसा कहते हैं. ये एग्जांपल मैंने लिया जहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर आया है. आइए जब नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या करना है. जैसा कि आपको पता है मैंटिसा को आप हमेशा पॉजिटिव लेना है. जैसे कि आप देख सकते हो नंबर क्या है 0.000521. तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर मैं इसको और आसानी से भाषा में लिखूं तो ये हो जाएगा 5.21 इंटू 1020304050 10 to the power -5. What you can see is it is 5.21 into 10 to the power -5. तो अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखना चाहूँ 5.21 into 10 to the power -5, तो डेफिनेटली ये 10 to the power -6 से बड़ा है. और just a second. So this is basically 10 to the power -6 है, डेफिनेटली 10 to the power -5 बड़ा होगा क्योंकि
this would be less than अगर आप देखोगे इस नंबर को, जस्ट रीराइट इट, अगर आप जैसे, चलो इतने बड़े डिजिट से थोड़ा मैं आसान कर देता हूँ, अगर मैं इसे कहूँ 0.00040 and then 521, so definitely this is 0.0401 and definitely this is 0.000301. So definitely this is what I can say the order, right? So this is basically going to be 10 to the power minus 5. This is going to be 10 to the power minus 5 and this is going to be 5.21 into 10 to the power minus 5 and definitely this is going to be 10 to the power minus 4. So आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है ये 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 4 के बीच में है. अगर मैं इसका लॉग निकालूं तो इसका आंसर क्या आएगा -4. अगर मैं इसका लॉग निकालूं तो इसका आंसर क्या आएगा -5. मतलब 10 पे मैं कितना पावर दूं कि 10 to the power -5 आ जाए, 10 to the power -5. और इसको मैं बोलूं 10 to the power -4 पे, 10 पे मैं कितना पावर दूं कि 10 to the power -4 आ जाए, तो -4. तो डेफिनेटली इसका अगर आप लॉग निकालोगे तो इट वुड बी समवेयर लाइक -4 पॉइंट समथिंग. इट वुड बी समवेयर लाइक -4 पॉइंट समथिंग, बिकॉज -5 से बड़ा और -4 से छोटा क्या नंबर होगा, -4 पॉइंट समथिंग. तो अगर मैं इसका लॉग निकालूं तो क्या आंसर आ रहा है -4.283168. लेकिन आप जैसा कि देखते हो कि अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो ये क्या होगा -4 माइनस, बट मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक और इसको मैंटिसा नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो मैंटिसा है ये नेगेटिव हो गया है. मैंटिसा क्या हो गया है, नेगेटिव. और हमारे को जो रूल क्या है वो क्या है कि हमारा मैंटिसा पॉजिटिव होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पॉजिटिव करने के लिए +1 कर दिया. अब यहाँ पे +1 क्या है तो यहाँ पे बैलेंस काउंट करने के लिए मुझे -1 करना होगा. तो आप देख सकते हो ऑरेंज में है -4 -1 और पिंक में है 1 -0.283168. तो आप कह सकते हो -5 इज योर कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक 0.71 समथिंग. सो ये जो 0.71 समथिंग होगा दिस इज गोइंग टू बी योर मैंटिसा. तो आपको जब भी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पता करना है तो आप जब log बेस 10 लेके निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें आपका एक इंटीग्रल पार्ट आएगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा. अगर पॉजिटिव आंसर आया है तो आप सीधे क्या होगे, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज योर मैंटिसा. और अगर नेगेटिव आंसर आया है तो आपको इतना इंश्योर करना है कि आपका मैंटिसा पॉजिटिव हो. जैसे यहाँ का आंसर आप देखिएगा क्या है -4.2831 समथिंग, तो मतलब -4 -0.283168. तो मतलब दो नेगेटिव नंबर हो गया. नाउ आई हैव टू मेक मैंटिसा इज पॉजिटिव. तो मैंने क्या किया, +1 कर दिया. अब यहाँ पे जब मैंने +1 किया है तो मुझे -1 भी करना होगा. तो इंटीजर क्या बन गया, -4 -1. तो मेरा जो इंटीजर है वो एक और कम हो गया है, -4 से -5 हो गया. और फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दिस इज हाउ वी फाइंड. आप एक खास बात ये देख रहे होगे कि लॉग निकालने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि किसी नंबर का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है. आई एम श्योर आप देख रहे होगे, जैसा कि मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका वैल्यू, लॉग की वैल्यू आती है लेट्स से 2 पॉइंट समथिंग, अगर किसी की वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट समथिंग तो डेफिनेटली ये जिसका भी लॉग आप निकाल रहे हैं वो 100 और 1000 के बीच की चीज़ है. वो 100 और 1000 के बीच की चीज़ है तो उसकी डिजिट कितनी होगी, 3 डिजिट्स. अगर आपसे कोई पूछता है, कोई लॉग है और उसका आंसर आता है 4.7 समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग मतलब you are lying between 10 to the power 4 and 10 to the power 5. 10 to the power 4 means how many digit, 5 digits. So you are talking about a 5 digit number. So when I say 4 point something, it means the number of digit. उसी तरीके से आपका आंसर जब नेगेटिव में आता है तो आप बता सकते हो कि आपके फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितनी जीरोज हैं. आप ये सारे क्वेश्चन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे. Now before I go further, I want to talk about why do we have to study this logarithm and what is this usage, what's the application of logarithm. I would like to first read one very important paragraph from a very important book. This is a quote from Mr. F. Khajuri's book, Mr. F. Khajuri's book, A History of Mathematics. बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, ज़रूर सुनिए आराम से.
The miraculous powers of modern calculations, the miraculous power of modern calculation are due to three inventions. One is the Hindu-Arabic notation. As we have already talked in one of our lecture in elementary mathematics, I talked about what is Hindu-Arabic notation. So the miraculous power of modern calculation are due to three inventions: the Arabic notation, decimal fractions, and logarithm. So जो modern calculation है, it has these three inventions has a great impact. One is Hindu-Arabic system, the other is the decimal, and the third one is the logarithm. The invention of logarithm in the first quarter of 17th century. So it was somewhere like first quarter of 17th century, means 1600 to 1625, was admirably timed, because at that time Kepler was then examining planetary orbits and Galileo had just turned the telescope to the stars. I am sure you know about Kepler and Galileo. If you don't know, it's time to Google it. During the Renaissance, German mathematicians had constructed trigonometrical tables with great accuracy, but its great precision enormously increased the work of calculator. It is no exaggeration to say that invention of logarithm by shortening the labors doubled the life of astronomer. So the impact, I just read a quotation excerpt given from a book, in a book. This book is a primer on logarithm by Mr. Shailesh Shirali. He's one of the most his work in the I'll tell you about Shailesh Shirali. He's the currently he was the principal of Rishi Valley School. It's a very famous school, and taught mathematics there for nearly 2 decades. He's closely involved with mathematical Olympiads, including the International Mathematical Olympiad. He was chairman of the problem committee at the IMO in 1996 in Mumbai, India, and leader of Indian IMO teams that appeared for IMO 1997 and IMO 1998. He is particularly interested in problem solving in the fields of geometry, number theory, and combinatorics. He serves on the editorial boards of Resonance and Samasya. So this is something like Mr. Shailesh Shirali. His work, and the paragraph which I wrote was from a book by another mathematician. The book of the title is History of Mathematics. It is like a 1910 or 1915 that book was written, the History of Mathematics. So you see that chap is telling that the three major inventions which has a great impact in mathematical calculation. One is Hindu-Arabic system, the other is decimal fraction, and third is logarithm. Because logarithm, if you look, it has a great power. How logarithm is helping us? I'll just tell you. Logarithm converted the problem of multiplication into the sum thing, into the additional thing. So if where you needed to multiply things, he found the alternative by adding things. You will see when we will be talking about properties. When you had to find the quotient of something, the logarithm helps you convert it into the matter of differences. So what I will be talking about those properties which will help you in if you talk about application part. So I'll tell you the application of logarithm does not only imply just in the field of mathematics, but it has a great significance in the field outside the mathematics as well. If you talk about in the premises of mathematics, it really helps you out in easing your calculation skills and all. It really helps you, drastically helps you in breaking the long calculation into a smaller one. Apart from this calculation ability, if you go into the field of application, if you go into the field of science, let's say there's an earthquake, then how do you measure an earthquake? You have a Richter scale that works on the principle of logarithm. If there is going to be a storm, the instruments which are going to be used is going to be the concept of logarithm. If you're going to talk about the bitterness and sourness, you must have heard of acid, base, salt. The pH thing. How do you find the pH of something? So that is also minus law of the concentration of hydrogen. So that is what a logarithm is going to help you. Even in the field of psychology, in the field of, even let's say today we are talking about coronavirus, we are developing so many mathematical models to predict the impact in every industry, how this thing is going to propagate, how these things are going to get. So we are using various models. I'm not saying that all those models are accurate,
but at the same time those are mathematical models. It's better to have a mathematical model than to go blind, right? So it's okay to rely on some mathematical models because that relies on statistics, that relies on data. So you can talk, you can interpret, and those models can fail, but it's okay. So the idea of log is like huge. Now let's talk to this very important part, the properties of logarithm. What exactly is the logarithm? What's the property? So as I have told you, it has a great power. It really breaks your product in terms of addition, as a problem of addition. When you see the property first, you see log base a of product mn is actually log of am plus log of an, where bases are a. So you can say log mn is equal to log m plus log n, where bases are a. Why this is happening? As you know, a should be positive and a should not be equal to 1. At the same time, जिसका आप log निकाल रहे हो, that has to be positive. Now ये property आता कैसे है? That is important. अगर मैं इसको right hand side को अगर पकड़ूं, if I say right hand side, and your right hand side is log a m, I'm considering m as positive, log a n. तो आपसे पूछ रहा है कि log a m plus log a n होगा क्या? अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं, इसको मैं इंडिविजुअली देखूं और इसको भी मैं इंडिविजुअली देखूं, मान लीजिए इसका आंसर आता है x और इसका आंसर आता है y, तो a पे मैं कितना पावर दूं कि m आ जाए? तो आप बोलोगे x, और a पे मैं कितना पावर दूं कि आपके पास n आ जाए? आपने बोला y. Finally you want your answer to be x plus y. This is your answer. This is what you want your answer to be finally. Now if I try to write this, a को मैं कितना पावर दूं कि m आ जाए? So you say x, तो आप कहते हो a to the power x is equal to n. और आप इससे बोलते हो कि a को मैं कितना पावर दूं कि n आ जाए? आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या कहते हो? a to the power y is equal to n. Now you want your final answer to be x plus y. You want your final answer to be x plus y. As you know, a to the power x into a to the power y is mn, and you know when the base is, when the power, आपको सब पता होगा कि जब बेस सेम होता है और दो पावर मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाते हैं. a to the power x plus y is mn. So you can say, okay, this is going to be something like a to the power x plus y is equal to mn. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि a को मैं कितना पावर दूं कि mn आ जाए? तो आप कह रहे हो x plus y. So finally you can write this can be written as log a mn, which is actually x plus y. So this is your right hand side. So you can say log a mn is equal to log am plus log n. So you can say the log of a product is sum of the logs. The log of a product. I hope सबको आपको समझ में आया होगा. The concept we used is आपको a to the power x into a to the power y, I am sure आपको पता होगा, that is a to the power x plus y. ये पावर मैंने यूज किया, मैंने लिखा राइट हैंड साइड में log बेस a m, मतलब a को मैं कितना पावर दूं कि m आ जाए, a को मैं कितना पावर दूं कि n आ जाए. मैंने कहा x, मैंने कहा y, इसको मैंने इसमें लिख दिया a to the power x is equal to m, a to the power y is equal to n. और मुझे फाइनली आंसर क्या चाहिए? x plus y, जिसको मैं लिख सकता हूँ a to the power x y is x plus y. क्या होता है आप यहाँ से देख लो, a to the power x into a to the power y is going to be mn. So a to the power x plus y is going to be mn. So I can say a to the power x plus y is equal to mn. So this is like a reverse thinking. I am sure आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है. दूसरा दीजिए, देख रहा है कि log of a quotient is difference of a log. मैंने क्या कहा? It has a great power. It breaks the question of a division in the matter of differences. So log of a quotient is difference of a log. Again follow me. आपको ये पता होगा a to the power x divided by a to the power y is a to the power x minus y. I hope everybody know this. अब देखो, मैं इसको कह रहा हूँ, इसका आंसर है x और इसका आंसर है y. तो आप इसको कह सकते हो a to the power x is m, a to the power y is n. Now you want your final answer to be x minus y. So you want something like a to the power x minus y is equal to what? तो आप ये जानते हो कि a to the power x upon a to the power y is m upon n, and what is a to the power x upon a to the power y? A to the power x minus y is equal to m upon n. So you know a to the power x minus y is actually m by n, और इसको आप log form में लिखोगे तो क्या होगा? log base a m by n is x minus y. So I can say this is actually equal to this. So I can say log a m minus log a n is log base a m upon n. So if someone asks you log of a quotient is difference of a log. Someone asks you what is the log of a quotient, you say difference of the log. Similarly, if I say log base a m to the power n,
इज n टाइम्स, आप ये बहुत ही कॉमन सेंस से बात कर सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है log a m टू द पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, log बेस a m इंटू m कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स m मल्टीप्लाई हो रहा है। व्हाट इज log ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी 1 देखिए, अभी हमने प्रूफ किया था, log ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ अ log, तो ये 2 के लिए वैलिड है तो 3 के लिए भी वैलिड होगा, n के लिए भी वैलिड होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log बेस am प्लस log बेस am प्लस log बेस am, कितने टाइम्स जाएगा ये log, n टाइम्स जाएगा। तो हर एक टर्म एक ही है और log am है और n टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, n log बेस am। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। आगे आगे बढ़ते हैं। log बेस ab इज इक्वल टू log बेस cb इज इक्वल अपॉन log बेस ca। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस। आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ पे एक log ab है और आपने फाइनली दोनों का log का बेस चेंज कर दिया, c चेंज कर दिया। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है, log 2 रूट 2 2 रूट 2 128 रूट 2, इस तरीके का सवाल आता है तो डेफिनेटली यू आर नॉट कंफर्टेबल कि 2 रूट 2 कितनी बार पावर दो कि 128 रूट 2 आ जाए। तो मैं अगर दोनों का बेस रूट 2 कर दूं तो ये सवाल आसान हो जाएगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द बेस, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या कहूँगा, log a b को मैं मान लिया आंसर x, क्या मान लिया मैंने आंसर x। सो फाइनली मुझे x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा, तो a को मैं कितना पावर दूं कि b आ जाए, a टू द पावर x इज इक्वल टू b। Now since you know this is an exponent and this is also a positive number, exponent हमेशा पॉजिटिव होता है आपको पता है, तो मतलब मैं दोनों साइड log ले सकता हूँ। मैं बेस c को log लेते हुए मैंने कहा log बेस c of a to the power x log बेस c of b। आपको पता है अभी हमने प्रॉपर्टी 3 में देखा है log a बेस m to the power n is n log am। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि log ये क्या हो जाएगा, x log बेस सी ए इज इक्वल टू log बेस सी बी। तो अगर मैं x को एक तरफ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, log बेस सी बी अपॉन log बेस सी ए। तो फाइनली क्या हो गया, x इज log बेस सी बी अपॉन log बेस सी ए। सो दिस इज हाउ आई कैन से दैट ओके दिस चेंज इन बेस रूल वर्क्स। अगर आगे देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, a to the power b log ba। Again if you see it is like if you look at the question says a is equal to b पे कुछ पावर दे रहे हो। अगर मैं भाषा में बात करूं b पे मैं कुछ पावर दे रहा हूं, कितना पावर दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ आप पावर पे देखो। आपको मैंने बोला b पे पावर चाहिए तो आपने बोला b पे कितना पावर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, b पे उतना पावर दो जितना a आ जाए, b पे उतना पावर दो कि a आ जाए। log ba का मतलब क्या होता है, b पे उतना पावर दो तो मान लो x देने से a आ जाता है, तो वही x आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो b टू द पावर x क्या होता है, a होता है। तो फाइनली यू कैन से इट इज गोइंग टू बी a। जैसे क्या हो रहा है, देखो भाषा में देखो, b पे कचड़ा पावर दो, b पे कचड़ा पावर दो। तो आपने पूछा कचड़ा क्या है, तो मैंने बोला कचड़ा log ba है। इसका क्या मतलब है, b पे कितना पावर दूं कि a आ जाए। तो आपने को बोला कि सर इसका मतलब x है, तो मतलब कचड़ा पे कचड़ा इज एक्चुअली इक्वल टू x और b टू द पावर x इज a, तो कचड़ा इज x तो b टू द पावर x इज a। आप ऐसे भी कह सकते हो। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से बताता हूँ, दूसरा मैथमेटिकल है तो लैंग्वेज तरीके से आप कह सकते हो। अगर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह देखोगे तो आप जानते हो कि आप कह सकते हो a इज इक्वल टू b टू द पावर log ba। अगेन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक द log एट बोथ साइड, आई कैन टेक द log एट बोथ साइड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, log बेस b के साथ मैंने ले लिया और log बेस b के साथ b टू द पावर log ba। तो आपको पता है यहाँ पे log ba हो जाएगा और यहाँ पे पावर बाहर आ जाएगा log, देखिए b क्या है यहाँ पे गौर से देखिए, ये क्या है log बेस b b टू द पावर log ba। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा और log bb हो जाएगा। तो log बेस ba log bb, अब b पे मैं कितना पावर दूं कि b आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी 1। सो यू कैन से log बेस ba इज इक्वल टू बेस log ba। सो दोनों इक्वल हो गया तो यस a इज ट्रू। अगर आप a नहीं कहना चाहते हो, आप इस तरीके से प्रूव करना चाहते हो, लेट्स से इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं।
लेट से आपको नहीं पता ये ए है कि क्या है, आपको नहीं पता कि ये ए है या नहीं है, तो आप क्या कह लो, आप कह लो सर बी टू द पावर लॉग बेस बी ए को मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या कह लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। और मैं सर अब दोनों साइड लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉग विथ बेस बी बोथ साइड। तो आपने क्या किया? आपने लॉग ले लिया, सिंस एक्सपोनेंट है तो दोनों पॉजिटिव होगा तो मैं लॉग ले सकता हूँ, तो मैंने लिया लॉग बेस बी बी टू द पावर लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स। अब आप देख सकते हो बी पे कुछ पावर है तो पावर तो बाहर चला जाएगा, तो हो जाएगा लॉग बेस बी ए लॉग बी बी इज इक्वल टू लॉग बी एक्स। लॉग बी बी का मतलब क्या होता है? बी पे मैं कितना पावर दूं कि बी आ जाए, दैट इज 1। सो लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग बी एक्स। तो इस दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चला है? बी को मैं कितना पावर दूं कि ए आ जाए, उतना ही पावर बी को दोगे तो एक्स भी आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? बी और एक्स, ए और एक्स, इसका मतलब हुआ ए और एक्स बराबर है। तो हमने एक्स माना तो एक्स क्या हो गया? ए। तो मैंने बोल दिया फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी। दूसरा देखते हैं लॉग बेस ए टू द पावर के। आप देख सकते हो बेस पे पावर के है, बेस पे पावर के, और फाइनल आंसर में सिर्फ बेस ए है। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है लॉग बेस ए टू द पावर के एम है। मैं एम को पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ इसलिए बार बार मॉड ले रहा हूँ। अब मैं दोनों का बेस ए ले लेता हूँ, तो चेंज इन बेस आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है, दोनों में लॉग ए एम अपॉन बेस लॉग ए टू द पावर के। मैंने एम को पॉजिटिव नंबर मान लिया है, बार बार मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया? लॉग ए एम तो ऊपर ही रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दीजिए ए पे मैं कितना पावर दूं कि ए टू द पावर के आ जाए, ए पे मैं कितना पावर दूं कि ए टू द पावर के आ जाए, दैट इज के। सो यू कैन से दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय के लॉग बेस ए एम। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, c टू द पावर लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू ए टू द पावर लॉग बी सी। मतलब आप देख रहे हो ये चीज की यहाँ जो कांस्टेंट है वो यहाँ का लॉग का पावर दे दिया गया है, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे इसका पावर दे दिया गया है, और कहा जा रहा है कि क्या ये सही है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, दोनों साइड हम लॉग ले सकते हैं। किसका लॉग ले सकते हैं? किसी भी बेस का आप लॉग ले सकते हैं। सिंस अभी लॉग बेस बी चल रहा है तो लॉग बेस बी ले लीजिए। तो लॉग बेस बी सी टू द पावर लॉग बी ए। देखिए क्या होगा आंसर, बस मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड दे रहा हूँ, तो पावर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग बेस बी ए, और ये क्या रह गया? लॉग बेस बी सी। आर एच एस में आ जाते हैं, आर एच एस में देखिए क्या है? ए टू द पावर लॉग बी सी, इसके आगे आपने लॉग बेस बी लगाया तो पावर बाहर आ जाएगा लॉग बेस बी सी, और ये क्या हो जाएगा? लॉग बी ए। तो आप देखो एल एच एस और आर एच एस बिल्कुल सेम है। आप डिफरेंट लॉग भी लेते तो भी सेम रिजल्ट आता। तो आप कह सकते हो सी टू द पावर, तो आप कह सकते हो एक्स टू द पावर लॉग एम y is y to the power log m x। आप इस तरीके से इक्वेशंस को हैंडल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, खास करके 9-10 के बच्चों को थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 11th के बच्चों को इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप ध्यान रखिए। दो प्रॉपर्टीज है, उसके बाद प्रॉपर्टीज सारे खत्म हो जाएंगे। लॉग बेस ए वन, मतलब ए पे मैं कितना पावर दूं कि 1 आ जाए, सो डेफिनेटली 0। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, ए पे मैं 0 पावर ही दूंगा तो ही बनाएगा। तो लॉग ए वन, ए आप हमेशा ध्यान रखो ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 0, और जिसका आप लॉग निकाल रहे हो दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और जब भी सब कुछ भूल जाओ तो बेसिक लॉग का डेफिनेशन करो कि किस पे कितना पावर दूं कि कितना आ जाए। इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर 1 होगा। ए पे मैं कितना पावर दूं, ये मैं लगातार आपके कॉमन डेफिनेशन से आ रहा है। तो आपने ये खास बात देखा होगा कि मैंने जितनी भी चीज़ें प्रूफ की है वो एक कॉमन डेफिनेशन से प्रूफ किया है। अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइम बहुत कम है, तो विल बिगिन विद द पार्ट 2, बट एट द सेम टाइम आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी डिड इन दिस लॉग थिंग। तो उसमें हमने जितना भी प्रॉपर्टीज किया है दैट नीड्स टू बी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि आप उस सारे प्रॉपर्टीज का प्रूफ भेज दें। At the same time, I would be much more happy if you really send me the brief history which we talked about log and what we talked about characteristic and mantissa and how to predict the number of digit. I hope अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप उसके बारे में नोट्स बना के जरूर भेजें। कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बस दिखा दूंगा, आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉगरिथम का पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जिसमें हम लोग और भी बात करेंगे, लॉग अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखिए जैसे कि लॉग 32,
इसमें आपको बेस नहीं दिखा रहा होगा, तो आपको पता है जब लॉग लिखा रहता है बेस 10 आप लिख सकते हो, 10 एज्यूम कर सकते हो। तो log 32 700 इसमें कौन बराबर है, आप इसमें आप गौर से देखो कि कौन से मैच कर रहे हैं। मतलब इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका होगा 32700। अगर मैं इसको लिख दूं log of 3.27 into 10 to the power 4, this is I can write. So what I can do is I can log of product is sum of log and you know base is 10. So I am sure आपको पता है इसको कैसे आप हैंडल करोगे। आप कह सकते हो log 10 3.27 प्लस log 10 10 to the power 4। तो आई होप आपको पता है, ऑप्शन ए आपको साफ दिख रहा हो कि ये सही आंसर है। ओके, आगे बढ़िए। दूसरा सवाल है log बेस 10 की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है log बेस 10 125 की वैल्यू। आपको log बेस 10 2 की वैल्यू दे रखी है 0.301 और आपसे पूछ रहा है log बेस 10 125 की वैल्यू। आप सोच रहे हो ये कैसे निकालें, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको log बेस 10 5 क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया 3 log बेस 10 5। आपसे पूछ रहा है log 5 का वैल्यू, लेकिन वैल्यू दिया है log 2 का, तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 log बेस 10/2। क्या लिख सकते हैं 5 को 10/2। और आपको पता है ये 3 बाहर रखिए, कोशेंट इज एक्चुअली डिफरेंस log बेस 10 माइनस log बेस 10 2। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0.301 दिया है। होप आप निकाल लोगे। ये देखिए क्या है log बेस A4 log बेस A16 log बेस A64 log बेस A256 इज 10। सो व्हाट इज A? आप गौर से देखो, आप देख रहे हो इट इज अ सम ऑफ log, तो आप कह सकते हो log बेस A सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 is 2 square, 16 is 2 to the power 4, 18 is 2 to the power 6 and this is 2 to the power 8। अगर आप देखोगे log A क्या हो रहा है 2 to the power 8 6 14 20। फाइनल आंसर आ रहा है 10, सो डेफिनेटली इट्स नॉट 2। सो आप क्या कर सकते हैं log बेस A 4 to the power 10 इज इक्वल टू 10। तो आप बताइए A क्या है, आपको पता है A क्या है। ओके, ये देखिए क्या है log 625 रूट 5। मतलब क्या बोल रहा है log 625 रूट 5। 625 में कितना पावर दूं कि रूट 5 आ जाए। डेफिनेटली सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि हमें क्या पता है, हमें पता है चेंज ऑफ बेस। तो मैं बेस क्या ले सकता हूँ log बेस 5 रूट 5 अपॉन log बेस 5 625। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बिकम इजी। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हाफ। 5 का क्या पावर दूं कि रूट 5 आ जाए, और 5 पे पावर क्या दूं तो क्या हो जाएगा 1/8। आई होम श्योर आपको समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूँ। हाँ 1/8 दैट इज गोइंग टू बी 4। तो 625 इज 5 to the power 3 log 5 प्लस 2 log 4 माइनस log 2। तो खास बात ये क्या है कि इसमें आप देख रहे होगे कि ये सारे log में बेस नहीं दिया हुआ है और log लिखा हुआ है, तो बेस 10 है। तो आप इसको लिख सकते हो log 5 क्यूब प्लस log 4 स्क्वायर माइनस log 2। तो अगर मैं इसको सम ऑफ log और डिफरेंस ऑफ log निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा 5 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 विच इज़ गोइंग टू बी log बेस 10 ऑलरेडी है दिखा हुआ 5 क्यूब बाई 2 क्यूब। 4 square is 8, 16 by 2 is 8, so this is going to be log base 10 10 cube. What is 10 cube? That is 3. So that was an easy question. I'm sure ये सारे असाइनमेंट है आपके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। Find the value of x when 3 to the power mod 3x minus 4 is equal to 3 to the power। यहाँ पे mod का वैल्यू का मतलब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 11th के बच्चे समझ रहे होंगे। mod वाले बच्चे जो अब तक नहीं जानते हैं उनके बारे में बता दूं। आप कह सकते हो 3 to the power mod 3x minus 4 is equal to 3 to the power 2x minus 2। तो आप कह सकते हो mod 3x minus 4 is 4x minus 4। अब mod को खोलने का दो तरीका होता है, mod को खोलने का दो तरीका होता है। mod आप पॉजिटिव हो तो एज इट इज रह जाता है और नेगेटिव हो तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको पता है 3x minus 4 जीरो कब होता है, आप कह सकते हो x is equal to 4/3 पे जीरो होता है। तो आप दो केस ले सकते हो, x greater than 4/3, x less than 4/3। x जब greater than 4/3 होगा तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो आप लिख सकते हो 3x minus 4 is equal to 4x minus 4। और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, is equal to 4x minus 4। आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 3x उधर चला जाएगा तो x बन जाएगा और ये हो जाएगा 0।
x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कह रहा है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो इसका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 4/3, तो आप इस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे -3x + 4 इज इक्वल टू 4x - 4। आप 3x को उधर ले जाओगे, ये बन जाएगा 7x और ये बन जाएगा 8। x क्या हो जाएगा 8/7। 8/7 4/3 से छोटा है, यस छोटा है, सो दिस इज गोइंग टू बी द ओनली आंसर। ओके, नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं, मैं आप लोगों का मॉड ये सब का भी कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए क्या है, log बेस 2 2/3 प्लस log बेस 4 9/4। बहुत सारे कुछ बच्चे इसको सीधे मल्टीप्लाई करने का सोच रहे होंगे, लेकिन बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, लेकिन इस बेस को सेम बनाया जा सकता है। कैसे? log बेस 2/3 प्लस log बेस 2 9/4 बाई log बेस 2 4। ये क्या हो जाएगा 2 4 2 बन जाएगा, दैट इज हाफ। और हाफ यहाँ, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ स्टेप वाइज, थोड़ा जल्दी हो गया है। तो मैंने इसको लिख दिया log बेस 2 2/3 और यहाँ पे लिख दिया है log बेस 2 9/4 और यहाँ लिख दिया है log बेस 2 4, राइट। आप जानते हो ये हो गया log बेस 2/3 और ये log 2, ये क्या हो गया log बेस 2 9/4 को ऐसे छोड़ दो और ये लिख दो 2। तो मतलब क्या हुआ, आप इसको भी आप देख सकते हो, आप 9/4 को लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा log बेस 2 2/3, ये 2 बाहर आ जाएगा, log बेस 2 3/2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका बेस सेम है तो log बेस 2 2/3 इंटू 3/2 क्या हो गया log बेस 2 1। 2 पे कितना पावर दो कि 1 आ जाए 0, सो आंसर इज गोइंग टू बी 0। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एक्सप्रेशन। अगेन आप देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है। तो अगेन आपको कमाल करने से पहले, आपको कोई भी कमाल करने से पहले आपको बेस सेम करना होगा, तो प्लीज़ पहले बेस सेम कर लीजिए, ठीक। सबका बेस 3 कर लीजिए और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल बी गेट द आंसर। ओके, log बेस 10 की 2 की वैल्यू दे रखी है और आपसे 125, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, आई थिंक रिपीट हो गया है, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ log a। देखिए अगर आप देखो तो देखने पे डरावना सा क्वेश्चन है, आप अंदर देखो, रेडिकल को आप 2/3 लिख सकते हो, इसको b5 लिख सकते हो, इसको c टू द पावर हाफ लिख सकते हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको log a b c के टर्म में लिख दो। तो आपको पता है ये क्वोशंट है, तो log a 2/3 माइनस log b5 c टू द पावर हाफ। अब आप इसको पता है कि ये प्रोडक्ट है, तो आप लिख सकते हो इसका तो क्या हो गया 2/3 log a, पावर बाहर निकाल सकते हो, और माइनस ये क्या हो जाएगा log b टू द पावर 5 प्लस log c टू द पावर हाफ। तो क्या हो गया 2/3 log a माइनस 5 log b माइनस हाफ log c। ये कहने को कह रहा था, देखने में खतरनाक सा था लेकिन है सवाल आसान। log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू देख रही है और आपसे पूछ रहा है इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। आपको पता है किसी भी नंबर का नंबर ऑफ डिजिट कैसे पता चलता है, अगर आपको पता है किसी नंबर का log, जैसे मान लीजिए log 1000 का नंबर का वैल्यू क्या होता है 3 और log 10,000 की वैल्यू क्या होती है 4, तो अगर आप 4 डिजिट नंबर की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में जो भी वैल्यू आती है, जो भी आपके पास log आता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के +1 कर देना होता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो अब आपको क्या करना है, आप मतलब कभी भी आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या है, तो आप उसका log निकालो बेस 10 लेके, उसके बाद आप देखो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें +1 कर दो, दैट इज द नंबर ऑफ डिजिट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो log 108 टू द पावर 10, आपको पता है बेस 10 है तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, 10 log 108। अब 10 तो बाहर ही है, log 108 को देखिए, 108 को आप लिख सकते हैं 3 क्यूब 2 स्क्वायर, 3 क्यूब 2 स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू कैन राइट। अब आपको पता है कि 10 बाहर रहेगा, आप log ऑफ प्रोडक्ट इज सम, तो आप कह सकते हो log 3 प्लस log 2 राइट। 27 into 4 is 108। आप लिख सकते हो 10 3 log 3 प्लस 2 log 2। अब देखो log, अब ये बाहर 10 बाहर ही रहने दो, 3 log 3 क्या होता है 0.477 और 2 log 2 क्या होता है 2 into 0.301।
अबे हम देखना है कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो झटपट करते हैं। 0.477 477 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1200 1431, तो 400 so this is going to be 1.431 and this is going to be 0.602, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 1.431 को अगर मैं कर दूं 1.431 को 0.602 से ऐड करूं तो ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 2.0, तो क्या हो गया 2.033 इंटू 10 दैट इज 20.33। तो इसका जो लॉग आ रहा है वो क्या आ रहा है 20.33, मतलब इट इज समवेयर बिटवीन 20 एंड 21, मतलब 10 टू द पावर 20 और 108 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 21 के बीच में लाई कर रहा है। तो बताइए 108 टू द पावर 10 कितने डिजिट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 20, तो फाइनली 20 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 21। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 21। अगेन आई वोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप तुरंत निकाल दो log 125 25 एंड यू कैन फाइंड द log, जो भी आंसर आएगा a पॉइंट समथिंग आएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट वुड बी a प्लस 1। ठीक है, मैं आगे कोई क्वेश्चन आपको आज असाइनमेंट में नीचे बॉक्स में नहीं दे रहा हूँ। ये सेशन नॉर्मली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में मैं 30 से 40 मिनट्स का ही सीरीज रखता हूँ, लेकिन ये लंबा हो गया क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात भी हो रही थी। आई एम श्योर आप लोग एंजॉय किए हैं। लॉग को घबराना नहीं है, लॉग को गर्दन से पकड़ना है, लॉग को एंजॉय करना है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, लॉग का मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारी और इंटरेस्टिंग बातें होंगी। आपका असाइनमेंट है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है। मैं आपको ओवरलोड नहीं कर रहा हूँ, मेरा मूड था कि आपको और क्वेश्चंस दें, लेकिन पहले आप इसे कर लें। पार्ट 2 में हम और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को लॉग केस में संभालेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप उसको हमें ईमेल पे, मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे नंबर अपने डाउट्स कंपाइल करके भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट चैप्टर जो लॉग का पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें वो सारे आपकी क्वेरीज को हैंडल कर लूँगा। ओके, एट द सेम टाइम आप पर्सनली मुझसे बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, जो दिक्कत पूरी क्लास की नहीं है वो आप अपने पर्सनल लेवल पे भी सॉल्व करा सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप आप सारे काम अच्छे से करेंगे एंड आई होप आप ये असाइनमेंट करेंगे। तो आज जो तारीख है वो है 26 अप्रैल, तो आपको ये जो असाइनमेंट है बाई 29 अप्रैल तक आप हमें भेज दीजिए, सो दैट वी कैन, जैसे कि आपके असाइनमेंट जब आ जाते हैं अच्छे खासे बच्चों के, तो फिर हम दूसरा एपिसोड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से आपके असाइनमेंट हमारे वीडियोस को प्रोपगेट करते हैं, प्रोपेल करते हैं, एनर्जी देते हैं। आप लोगों की एनर्जी को देख के हमें एनर्जी मिलता है, सो प्लीज़ बी मोटिवेटेड, यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। आई एम श्योर आप लोग आगे भी करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।